السلام علیکم، میں شہباز بہاولپوری دوائر ارم سے جی چولستانیوں 12 ربیع الاول کے دن کے پروگرام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں جو آلریڈی اپلوڈ کر دی ہم نے سوشل میڈیا پہ، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں @شہباز بہاولپوری کو سرچ کر کے فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ اور یوٹیوب پر۔ اس وقت یہ ہم جا رہے ہیں جی قافلے کے ساتھ، داتا کی نگری کا شہر ہے یہ لاہور، داتا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر دینے ہم جا رہے ہیں جی۔ اب ہم نے ایک گروپ کو کراس کیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بھائی صاحب جو ہیں پراڈو کے اوپر جو ہیں وہ ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں، اپنے جتنے سپورٹر ہیں اور جو ساتھ روڈز پہ کھڑے ہیں لوگ ان کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت رونق خوبصورت، ماشاءاللہ نعت شریف جو ہے وہ ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ اب ایک اور گروپ جو ہیں، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسٹ مزار سے پہلے ایک اور گروپ ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوشبوئیں جی، عطر، سبحان اللہ، فیملیز بھی شامل ہیں، چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، اور یہاں یہ دیگوں کا نظام جی، جو لنگر چلنا ہے، لنگر لوگ آ کے یہاں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر گروپ نے مختلف فلیگز لیے ہوئے ہیں، کسی نے ریڈ کلر کے، کسی نے یلو کلر کے، اور میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی منا رہے ہیں اپنے انداز میں۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باہر کا منظر، رائٹ سائڈ پہ پارکنگ ہے جی بائک کی، وہ ہم بائک پارک کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا سما ہے۔ اب ہم اندر آ چکے ہیں جی، اور یہ انٹری پوائنٹ ہے۔ یہ سارا سامنے سیکیورٹی کے جو ہیں وہ ماشاءاللہ پوائنٹس بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی تک الحمدللہ ہر جگہ پیسفل، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ جو بھی حضرات ہیں پہلے اپنے شوز اتاریں اور یہاں جمع کروائیں، لیکن جب بھی جوتا رکھوانا ہے یہ پوچھ کے کہ کیا لوگ ہیں، نہیں تو یہ ایک ایک جوتے کا 500 روپے بھی مانگ لیتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے 12 ربیع الاول 2 جوتے ہیں پوچھو کتنے 20 روپے۔ جب بھی آپ آئیں ایک تو پرائس پوچھ لیں اور دوسرا ٹوکن ضرور لے لیں، اور دیکھ لیں کہ تسلی سے کہ آپ کے شوز جو ہیں وہ پراپرلی رکھ دیے گئے ہیں، اور جب تک وہ ٹوکن نہ دیں آپ نے نہیں جانا۔ ٹوکن چلیں جی دوستوں، ہم نے اپنا ٹوکن لے لیا، شوز لے سکیں ہیں، اور اب ہم وضو کر رہے ہیں۔ عرفان صاحب جو ہے جی وہ وضو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ سامنے عرفان صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا صحن، یہ سارے حضرات جو ہیں وضو کر رہے ہیں، وہاں جا کے نفل ادا کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ میاں ان ہستیوں کے وسیلے سے ہمیں بھی معاف کر دیں، ہمارے بھی معاملات خیر والے، خوشیوں والے، سلامتی والے کر دیں، آمین۔ عرفان صاحب نے آلموسٹ وضو کمپلیٹ کر لیا ہے جی، وضو کا احاطہ بھی اچھا خاصا بڑا ہے۔ یہ کارپٹ بچھی ہوئی ہے، تو وضو کرنے کے بعد کوشش کریں اس سے گزریں، کیونکہ ساتھ جو ہے نا وہ فرش وہاں سلپ نہ ہو جائیں، اسپیشلی یہ جو بڑے بوڑھے اور بچے آتے ہیں، یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تو ویسے ساکس پہنی ہوئی ہیں، وضو میں تھا میں الحمدللہ۔ عرفان صاحب نے وضو ریفریش کر لیا ہے۔ یہ بھی احاطہ ہے سارا، جہاں پہ مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آرام کرتے ہیں۔ بس ظاہر ہے پورا دن عقیدت و احترام سے یہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بزرگان دین ہیں جن کی وجہ سے دین بر صغیر میں پھیلا۔ یہاں ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں والز کے اوپر۔ یہ عرفان صاحب سٹیئر چڑھ رہے ہیں جی۔ موسم بہت پیارا ہے، بادل اوپر ہیں، کالے کالے بادل، سیاہ بادل۔ سامنے دربار مبارک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم مزار کی طرف چلتے ہیں۔ کنسٹرکشن کا ورک جاری ہے، نیو ماشاءاللہ مینار مجھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، داتا کی نگری لاہور مشہور ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیلاً، چلیں چلتے ہیں۔ ایک خاص بات میں چولستانیوں آپ کو بتاتا ہوں، بہاولپوریوں، بہن بھائیوں، ساؤتھ پنجاب والے ذرا سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 برس، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عمر 63 برس تھی۔ نسبت دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 1009 میں پیدا ہوئے اور 1072 میں وفات پا گئے۔ آپ غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے اور لاہور میں آپ نے وفات پائی۔ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب، اور آپ کو یہاں کے سارے حالات اور واقعات بھی بتائیں گے، دکھائیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ، کس طریقے سے وہ دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پہ اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، صفائی والے جو ہیں وہ بھی یہاں ماشاءاللہ صحن کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، یہاں پہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے، کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔
मौसम बहुत प्यारा है, इसलिए नंगे पाँव फर्श पे आपके पाँव नहीं जल रहे, आप इंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक नीचे अहाता है जहाँ लंगर खान जो है वो लंगर तकसीम होता है, खाना तकसीम होता है। जी हम दरबार की तरफ चल रहे हैं जी। तादाद इस वक्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल को हमने ये बनाया व्लॉग। बस अब यही हम करीब चलेंगे जहाँ मैंने इशारा किया है। लोग जिस सर पे हरी टोपियाँ भी पहन रहे हैं। और जी इस वक्त हम ये कालीन के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लोग जो हैं ये चंदा नजराना पेश करते हैं इस बॉक्स में, जो फिर ज़ाहिर है इंतज़ामिया इस्तेमाल करती होगी, जिससे अभी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ दरबार पे। अच्छा खासा रश लाइनें लगी हुई हैं दरबार में हाज़िरी देने के लिए। ये देखें, आपको दिखाते हैं इतना बड़ा फ़ैन, वाह। यहाँ लोग बैठे हैं उसके सामने फ़ैन के, ये फ़ैन देखें और देखते हैं कि हवा कैसी आ रही है। यार हवा तेज़ आ रही है भाई, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। ये इरफान साहब ज़रा सामने आए ना, ये इरफान साहब को देखिए आप, उनकी शर्ट पर बालों, ओह हो बहुत ज़बरदस्त खासा बड़ा पंखा, क्या बात है। जैसे वो सिंध में कराची में होते हैं ना बड़े बड़े पंखे, ये वैसा है बिल्कुल। सब्ज़ गुंबद, ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और ये एक जगह है जहाँ पे लोग हदिया करते हैं, पैसे वगैरह फेंकते हैं। यहाँ आप जो है पहले यहाँ बैठते थे और तालीम और तरबियत का सिलसिला चलता था। ये लोग जी यहाँ नमक भी खा रहे हैं, साल्ट। अब ये इसके पीछे क्या हिकमत है कि लोग ये नमक वगैरह क्यों चाट रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये देखें ज़रा आप, ये देखें जी कॉइन्स, सिक्के, पैसे पड़े। ये वो जगह है जहाँ आप लोगों को तरबियत देते थे, बैठते थे, ये वो मकाम है। इरफान साहब ने कहा जी मैं भी चख लेता हूँ ये नमक, क्या पता मेरे भी मामला तो तकदीर जो है वो बदल जाए। इरफान साहब इस वक्त इरफान साहब बड़े गौर से देख रहे हैं कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बैठते थे और तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखते थे। इरफान साहब ने दुआ का इजहार किया। मैंने कहा इरफान साहब दुआ यहाँ नहीं करनी, मेहरबानी फरमाएं, और दरबार की तरफ जाके दुआ करेंगे। ये आप जी हम आपको बाहर का मंजर दिखा रहे हैं। इरफान साहब ने थोड़ी सी स्माइल दी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं थोड़ा मज़ीद आगे जाके, ये मस्जिद है नमाज़ पढ़ने की जगह। बैठनी है यार, 2 और 9 वैसे तो हैं नहीं, अच्छे इस्तेमाल होना पे चौं चौं करेंगे। ठंडा पानी, हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह, पियो दाता साहब दी नगरी तो ठंडा पानी थोड़ा चख लो, ठंडा पीना माशाल्लाह वेरी गुड। ठंडा है, ज़बरदस्त ठंडा माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, हमने भी यहाँ पानी पिया, वाकई कमाल ठंडा, बेहतरीन टेस्ट, थम्स अप माशाल्लाह। दाता दरबार लाहौर पाकिस्तान का बहुत मशहूर दरबार है। इस अहाते में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। तकरीबन 1000 साल से ये मौजूद है। ये मज़ार लाहौर की पहचान है। इस वक्त हम मौजूद हैं माशाल्लाह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये मस्जिद है जहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ी खुली कुशादा मस्जिद है माशाल्लाह। और जब पहले आया था तो इतने इंतजाम नहीं थे, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हुए और कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मैंने आपको तफसीलन बता भी दिया और मज़ीद भी बताएंगे इंशाल्लाह। आपको जुड़े रहें हमसे। आपका नाम सैयद अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी अल गज़नवी सैयद अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श है। आप 11वीं सदी के फ़ारसी सूफ़ी और आलम थे जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में जनूबी एशिया में एक अहम किरदार अदा किया। आपने इल्म के हसूल के लिए बहुत से ममालिक का सफ़र किया और आखिरी उम्र जो है वो आपने लाहौर में गुजारी और यहीं फिर वफ़ात पाई। 5 बजे फजर है, 1:30 बजे ज़ोहर है, 5 बजे असर है, 6:21 पे मगरब है, 8:15 पे इशा है, 2 बजे जुमातुल मुबारक है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार के साथ ये मस्जिद है। अगर आपने यहाँ आके नमाज़ पढ़नी हो तो ये मैंने औकात आपको बता दिए जी। माशाल्लाह मस्जिद बहुत बड़ी है। ये मस्जिद का अंदर का अहाता है, हज़ारों लोग यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। भाई ठंडा पानी है, ठंडा पानी है भाई, ठंडा पानी, गर्म नहीं पानी, ताज़ा है। ठंडा पानी जो बाहर लगा हुआ था ये ताज़ा पानी है भाई, लेकिन पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। गिलास है, तबर्रक लेकर उनके साइड पर गिलास को रखें आप।
वरना आपको तबरक किसे हुए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारा सिस्टम हो गया। मैं भावलपुर से शिवान बोल रहा हूँ। मैं खादिम हूँ सरकार का। मैं ऑन ड्यूटी खड़ा हुआ 29 साल सर्विस हो गई है। 16 साल मदीने पाक में ड्यूटी की है। मस्जिद नबी में सफाई करता था मैं। 80 में गया था, 96 में वापस आया हूँ। जब मैं 1980 में गया उस वक्त मुझे पता नहीं था वहाँ के कवायद जवाबत का। पहली मरतबा गया था ना, फिर 1 साल मैं इधर रेस्ट किया तो मुझे आप मौलम ने समझाया। उसके बाद फिर मैंने 1981 से लेकर 1996 तक मैंने मतवातर हज किए, 15 हज किए हुए, जिसमें 2 अकबरी हज है। 96 में वापस आया हूँ मैं इधर, 97 में इधर आया हूँ दरबार शरीफ। 29 साल इधर हो गए। ये हजूर का करम। पहले आका के डेरे, अब गुलामों के डेरे। हम फ़कीर है जी, वो आका, ये गुलाम, हम फ़कीर। जब तक अदब नहीं करेंगे ना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ अदब नहीं है, यहाँ हमारे अदब नहीं है। पढ़ने का नहीं पता किस तरह पढ़ते हैं। मदीने पाक में चले जाओ ना, शेल्फें लगी हुई हैं, आप खड़े हैं तो साथ हो जाती हैं, भाई आप भी आ जाए। और यहाँ जब बैठते हैं तो एक शेल्फ के ऊपर यूँ करके बैठते हैं कि दूसरा आदमी ना बैठ सके चौकड़ी को। ये अदब नहीं है। अदब ये है, ये गोडा नीचे टिकाओ, ये गोडा खड़ा करो, फिर आप पढ़ो। यही खाना खाने के लिए सुन्नत है मेरे नबी की। कौन इख्तियार करता है नबी की सुन्नत? अगर हम सुन्नत नबी की इख्तियार करेंगे, खुदा की कसम हमें कोई मार ही नहीं सकता। हम उसकी बातों पे अमल नहीं करते। कुरान पाक है, अंग्रेज़ों ने पढ़ के इसको अमल किया। ये ईसाई है मेरे घर के पास, खुदा की कसम इतनी जोर जोर से कुरान पाक पढ़ता, मैं आपको क्या बताऊँ। है इस क्रिश्चियन है, नाम क्या? सिस्टी राइट, नाम क्या? दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के खादम से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत दिल को अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कुछ सीखा होगा। चलें अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि मखाने तकसीम कर रहे हैं। एक भाई जो हैं वो बाहर से मखाने लेकर आए हैं। अब इसको शॉपर को वो खोल रहे हैं और ये बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। इरफान साहब ने ले लिया जी। अब ये सबको थोड़े थोड़े मखाने तकसीम कर रहे हैं। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, एहतराम है कि लोगों में शेयर करते हैं। जैसे हम मक्का और मदीना में जाते हैं तो लोग बाँटते हैं। अब ये मैं आपको दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के पास लेकर जाता हूँ और अंदर का अहाता दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, बच्चे बूढ़े बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। ये देखें कब्र मुबारक, फूल ही फूल माशाल्लाह, रौनक ही रौनक। आप देख सकते हैं बेहतरीन माशाल्लाह समा। और अंदर जो हैं वो गार्ड भी तैनात हैं, खिदमत करने वाले सारे माशाल्लाह अंदर बाहर सब मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के वास्ते हम सब के मामलात भी आसान करें, खुशियों वाले करें, सलामती वाले करें। बाअदब तरीके से खड़े हुआ करें, शोर ना किया करें, कोशिश किया करें कि जितनी खामोशी हो सके वो करें। और एक दफ़ा अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। एक दफ़ा अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ने लगा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का इज़्ज़त और एहतराम का, तक़द्दुस का आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी। चलें अब यहाँ से चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या हो रहा है यहाँ पे। दरबार का विज़िट करवा रहे हैं आपको। अब ये दरबार में जी ये इस वक्त यहाँ भी पानी लगा और पानी के टैंक के ऊपर ये कबूतर देखें, दाना खाते हुए कबूतर। और साथ ही ये दाने की जो बाल्टी है, अच्छा खासा दाना यहाँ मौजूद है। लोग आके ज़ाहिर है वो यहाँ तकसीम कर देते होंगे। अब ये जी कोई दोस्त हैं जिन्होंने टॉफ़ियाँ जो है ना वो तकसीम करना शुरू कर दिए। रश ज़्यादा हो गया था तो फिर वो दूर दूर फेंकने लगे, क्योंकि अच्छा खासा लोग जो है ना वो अकीदत समझ के इसको लेते हैं कि भाई ये खाएंगे तो अल्लाह शिफा दे देंगे। और जो तकसीम करने आते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम तकसीम करेंगे तो अल्लाह हमारा रिस्क बढ़ा देंगे। रश अच्छा खासा हो गया, बच्चे और जवान वो ये देखें किस तरीके से तबर्रुक को लेना चाह रहे हैं।
اب یہاں پہ جو ہے وہ مختلف جو ہے لوگ وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی نعت سناتے ہیں آپ کو. پیڑ سوالی لہج میں میری ہے یہ مان کے آئیں گے، لہج میں میری کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ جو آپ سب سے محبت کرتے ہیں ان کے دربار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. چلیں چلتے ہیں جی. اب جی ہم ٹوکن دیتے ہیں انہیں اور اپنے شوز لیتے ہیں اور نکلتے ہیں اگلے ولاگ کی طرف. جی چولستانیوں بہنوں بھائیوں، میرا خیال ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے نیکسٹ ولاگ میں اور دریائے راوی میں دکھائیں گے پانی کتنا آیا ہوا ہے.